देखेंगे कितना टाइम लग रहा है। चलो क्लास शुरू करते हैं। So we were talking about line segment. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए, so line segment in Rn. I will define in Rn. So you have suppose 2 points x, x1, x2, and so on, xn, and y is y1, y2, and so on, yn. ठीक है, belongs to Rn. These are the points of Rn. So if I want to define a line segment, so what is line segment? So line segment is x1, y1, x2, y2. So you can say line segment is the collection of all points. Is the collection of all points x such that and y. नहीं, अगर हम कोई पॉइंट ये x, इसे एक काम करो, एक्स वाई लिया है ना हमने, तो इसको x डैश ले लो या तो of our points x dash such that so all x dash will be what? Lambda x plus 1 minus lambda y, where lambda is lying between 0 to 1. ये lambda पे restriction must है कि lambda lying between 0 to 1. It will give you the line segment. So for lambda is equal to 0, you can say for lambda is equal to 0, your x dash will be what? X. So if you suppose it is a point, it is a line on Rn. Rn की x line dash है. equal to y parallel to x axis, sir. और for क्या? Lambda is equal to 1. Sir, x dash equal to y lambda 0 पे. और lambda is equal to 1 पर x dash will be what? 1 minus lambda है या प्लस के नहीं है? 1 Yes, minus, sir. है ना? 1 minus lambda, sorry. X dash y हो जाएगा. So here this is your initial point x, this is your final point y, which exists at the boundary of lambda, and rest of the points will give you in between points. So there are infinite many points, so you will cover all the points between x and y. है ना? जैसे for lambda is equal to half, x dash will be what? x by 2 plus y by 2. हाँ, मिड पॉइंट आ जाएगा इसका. So you have infinite many choice, you have infinite many points. So this is a line segment. The point is that this line segment has a fixed length, है ना? इसकी length fixed है. It's a part of line having fixed length. क्या होगी इसकी length? What is the length? क्या length इसकी? कैसे निकाल सकते हैं? पता है कोई फॉर्मूला? Length formula, sir. Distance formula. लेंथ का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस निकाल लीजिए बिटवीन एक्स एंड वाई. व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? x2 minus xy, x2 minus x1 square plus y1 minus y2 square. x1 minus y1 whole square plus and so on xn minus yn whole square, है ना, under root of this. So this is a line segment having fixed length. Length is important because this will define the convex set. Next thing we have hyperplane. सर Yes. सर पीछे वाली स्लाइड में सर लेमडा जब 0 है जी, तो x डैश y के बराबर होगा ना? 0 है तो y. उल्टा है शायद. चलो y लिख देंगे आप, ठीक कह रहे हैं आप. वो सेगमेंट आप 1 माइनस लैम्डा ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, x हो जाएगा. You can write 1 minus lambda x plus lambda y. It will change just the orientation, doesn't matter. You can write 1 minus lambda x plus lambda y. उस केस में क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? y.
here initial point is Yes. y, final point is x, Y है ना? actually हाँ, y. तो अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो you are moving here from y to x. अगर मैं lambda x plus or minus lambda y लूंगा तो initial point will be y and final point will be x, है ना? Yes, sir. हाँ, but it is correct. और 0 पे आप पुट करेंगे तो y आएगा, ठीक है? So here next definition we have hyperplane. So what is hyperplane? So in Rn, देखो whatever I am defining Rn, you can take particular case and 2, ये 3 एक बार and पीछे वाला को बता देना सर। क्या क्या सर बताओ? सही लैम्डा 0 लैम्डा 1 लैम्डा 0 रखेंगे ना यहाँ, जब लैम्डा 0 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? आपने ये क्वेश्चन ली है तो फॉर लैम्डा 0 x डैश विल बी y. अगर आप x डैश इज इक्वल टू लैम्डा y प्लस 1 माइनस लैम्डा x लिखेंगे तो फॉर लैम्डा 0 पे x डैश विल बी x हो जाएगा, ठीक है? तो लैम्डा 0 मींस व्हाट? योर इनिशियल पॉइंट, लैम्डा 1 मींस फाइनल पॉइंट. तो लैम्डा 0 1 मींस यू आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. और अगर ये लाइन सेगमेंट लिया हुआ आपने तो हेयर फ्रॉम x टू y, और अगर ये लाइन सेगमेंट ले रहे हैं तो फ्रॉम y टू x, ठीक है? सिर्फ मूवमेंट बताएगा, ये रहेगा वो वाला, इट इज लाइन सेगमेंट. लेंथ तो सेम ही होगी ना. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, लेंथ विल बी सेम, ओनली इट विल चेंज द डायरेक्शंस. और सर इसके जो एक्स वाई के पीछे पॉइंट इसके वो क्या है सर कोऑर्डिनेट? तो सब इसके बिटवीन द पॉइंट्स हैं, यही तो आपके लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स हैं जो बीच से कोऑर्डिनेट्स है. दे आर लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट, वो सब इस सेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है? ये लाइन सेगमेंट है. सर क्लियर? यस सर। Yes, sir. So next definition we have hyperplane. So in Rn, the set of points x is equal to x1, x2 and so on xn. This belongs to Rn, n tuples हैं, satisfying yes such that z is equal to c1 x1 plus c2 x2 and so on cn xn. This defines a hyperplane. This defines a hyperplane. For the given value of ci and z. ci और z अगर आपको गिवन है, जैसे सपोज करिए c1 c2 cn, सपोज फॉर r2 ले लें अगर मैं, फॉर r2 है ना, पर्टिकुलर. सपोज c1 c2 r2 में c1 is 1, c2 is 2 and z is 3. So your plane will be what? 2x1, c1 x1 लिया है तो x1 plus 2x2, this equal to 3. So this is a hyperplane over R2, ठीक है? ये क्या आएगा आपके पास, ये जो है इट्स अ लाइन, Yes, है ना? sir. हाँ, so over Yes, R2, sir. By हाँ, 8 हाँ, by 2. तो over R2 is a hyperplane. ऐसे अगर आप 3 ले लें for R3, suppose C1 is 1, C2 is 2, C3 is 5 and Z is some 8. So your x1 plus 2x2 plus 5x3 is equal to 8. So this is the hyperplane for the given values of ci's and cz, है ना? So you can see that any hyperplane, जैसे अगर मैं इसको R2 में प्लॉट करूं, x1 plus 2x2 3, x1 by 3, x1 by 3, x2 by 3 by 2, ये एक लाइन आ रही है सपोज करिए, सपोज 3 and 3 by 2. So any hyperplane actually what it will do, it will divide the region into two parts, है ना? एक upper part होगा, एक Lower. lower part हो ना. So any hyperplane divides the Rn into two parts, open upper half and lower half, ठीक है? इसको हम ये भी कहते हैं पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस. जो अपर वाला है ग्रेटर देन दैट इज पॉजिटिव हाफ स्पेस एंड दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव हाफ स्पेस. अब वो डिपेंड करेगा अगर इक्वलिटी, अगर मैं यहाँ पर
if I am, this part is what, this is your x1 plus 2x2 greater than equal to 3, अगर इस part पर हूं मैं, and this below part is what, x1 plus 2x2 less than equal to 3, है ना, इक्वलिटी इधर है, तो जो आपका ग्रेटर देन है, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लोज्ड हाफ स्पेस। क्लोज इसलिए कह रहा हूं मैं बिकॉज आई हैव इंक्लूडिंग द बाउंड्री, है ना, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लोज्ड हाफ स्पेस। अगर मैं बाउंड्री हटा दूंगा तो आई विल से पॉजिटिव ओपन हाफ स्पेस। इफ यू हैव बाउंड्री यानी कि ये लाइन इंक्लूड है तो इट इज पॉजिटिव क्लोज्ड हाफ स्पेस एंड इट इज नेगेटिव क्लोज्ड हाफ स्पेस। जो बिलो साइड में होगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव क्लोज्ड हाफ स्पेस, है ना। क्लोज किस सेंस में कह रहे हैं, बिकॉज आई हैव इंक्लूडेड द बाउंड्री ऑफ द रीजन, रीजन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, इस वजह से। तो एनी हाइपरप्लेन डिवाइड्स द रीजन इनटू 2 पार्ट्स, अपर एंड लोअर। ऐसे R3 में बनाएंगे तो R3 में प्लेन हो जाएगा आपका, इट्स अ प्लेन, है ना। सो इन जनरल इन Rn वी से दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ हाइपरप्लेन for given Ci's and Z, for given Ci's and Z, कुछ Ci Z given, अगर 0 हो जाए C1x1 plus C2x2 and so on, Cn xn is equal to 0, it means what, it means what, it's a hyperplane, हाँ, it's a hyperplane passing through origin, है ना। और here you can see that it means what, because you have dot product 0, so you can say Ci's are orthogonal to Xi's, Yes. है ना। This means Ci's orthogonal to Xi's, C1 x1 के C2 x2 के and so on, because dot product is 0, so it's also hyperplane passing through origin. So now the definition comes, main definition, convex sets. सर बैक वाला पेज दोबारा दिखा दीजिए थोड़ा। देखिए ओके सर, हो गया। So next we have convex sets. Okay. तो कॉन्वेक्स सेट क्या हुआ, अगर मैं Rn की बात कर रहा हूं मैं, सपोज अ सबसेट S सबसेट ऑफ Rn is called convex set if for any 2 points, suppose your 2 points x, y, they belongs to S, the line segment joining x and y also contained in S. That means mathematically, if x, y belongs to S, then lambda x plus 1 minus बार माइनस प्लस क्यों बन रहा है यार, then lambda s plus 1 minus lambda y, this also belongs to where, S. ओके, किसके लिए, सर मतलब x और y से जो भी लाइन सेगमेंट जाएगी हाँ, वो भी इसमें लाई करेगी, उसके हाँ, सारे पॉइंट इसमें लाई करेंगे। हाँ, यानी ये पूरा लाइन सेगमेंट, वही तो लाइन सेगमेंट है ना यार, जी पूरी जी लाइन क्या, लाइन सेगमेंट ही तो कह रहा हूँ मैं। If xy belongs to S, then lambda x plus 1 minus lambda y belongs to S, where lambda is lying between 0 to 1. बात समझ में आ गई। ऐसा कोई भी सेट कॉन्वेक्स होगा कि अगर आप उसके कोई भी 2 पॉइंट्स उठाएं, है ना, कोई भी, यानी कि फॉर एवरी, यू कैन से फॉर एवरी पॉइंट, उनको लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट उस सेट में आना चाहिए। अगर कोई 2 पॉइंट ऐसे मिल गए कि द लाइन सेगमेंट इज नॉट कमिंग इनसाइड द सेट, then the set will be
नॉन कॉन्वेक्स सेट है ना, नॉट कॉन्वेक्स। अब बताइए मुझे एग्जाम्पल बताइए जरा, सर्किल कॉन्वेक्स है क्या? नहीं सर। सर्किल, सर्किल की क्वेश्चन अगर मैं R2 में ले रहा हूं तो R2 में सर्किल की क्वेश्चन क्या होती है? ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तब वो सेंटर एट 0 ले लूं अगर मैं फॉर अ मोमेंट, इज इक्वल टू सम ए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हाँ, if its center is 0 0, तो is it convex है? बताइए। नहीं सर। नहीं है भाई, एक ही लड़का कह रहा है नहीं, सर्किल बाकी के सब मान रहे हैं कि कारण- बाकी सब मान रहे हैं कि है, क्यों भाई? सर्किल कॉन्वेक्स है या नहीं है? तकी बताओ, जी सर। सर्किल कॉन्वेक्स सेट है या नहीं? यस सर सर, क्योंकि सर इसकी डेफिनेशन वही होती है, क्या कॉलिनियर पॉइंट्स का सर वही है, वो होता है सम। सर्किल कॉन्वेक्स है नहीं, ये बताओ मुझे यस सर। क्यों? नहीं है सर सर, नहीं है, सर इन्हें इसके पॉइंट सर तकी इसके नहीं होगा सर। तकी को एक्सप्रेशन देने दो जरा, देखें तकी क्या नहीं कहा। होगा सर कॉन्वेक्स। बताइए, तकी को बोलने दिए, बाकी लोग जरा खामोश रहे, देखो इनके दिमाग में क्या बात समझ में आई, बताओ तकी। हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, ठीक है, इसे जो ये जी पॉइंट सर। सर्किल पर है, ये सपोज x बिलोंग्स टू s, सर y नहीं होगा बिलोंग्स, सर, क्योंकि कॉर्ड सर नहीं होगा, सर नहीं होगा सर, क्योंकि कॉर्ड सर सर्किल को लाई थोड़ी करेगी कॉर्ड। तो फिर अभी तो आप कहते हैं सर वो गलत कह रहा था सर, गलत कह रहा था। सर्किल आपके पास क्या है, सर्किल मींस दिस स्पेस इज एम्प्टी। सर्किल जी मैंने सर। बताया ना, सर्किल क्या है Yes, कि आप sir. एक वायर लो, वायर को सर्कुलर मोड़ दो। जी सर, ठीक 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 ठीक। ये कॉन्वेक्स कब बन सकता है? व्हाट द चेंज शुड बी देयर दैट इट विल बिकम अ सर्किल? सर जब इस सर्किल की रेडियस इन्फिनिटी हो। तो क्या होगा, रहेगा तो सर्किल ही। नो, लेकिन सर उसका जो इस वो सर सरफेस, टेंजेंट हो वो जो सकती है, कर्वेचर नहीं होता टेंजेंट हो वो सकती है, एकदम। टेंजेंट टेंजेंट कहाँ से? टेंजेंट हो सकती है सर। मैं कह रहा हूँ सर, इसको हम सर्किल को क्या करें कि ये आपका कॉन्वेक्स सेट बन जाए। माय क्वेश्चन इज दिस, टेंजेंट कहाँ से आ सर गई? डिस्क बना लेंगे, डिस्क हैं? बना लेंगे उसको, जी डिस्क बना लेंगे। सही, कौन बोला है? मनीष प्रसाद। ये सर हाँ, मनीष प्रसाद ने सही जवाब दिया। अगर इस सर्किल को हम डिस्क बना लें, डिस्क कैसे बनाए, क्या सर करें? प्लेन में ले लेंगे, लेस देन इक्वल कर दें सर। प्लेन लेस देन इक्वल कर प्लेन दो। में लेस देन और इक्वल टू कर देंगे। प्लेन में तो ये भी है भाई, सर्किल तो प्लेन में होता ही है नहीं है। ना, प्लेन ही है। मैंने ओरिजिनल बनाया था तो यहाँ पर प्लेन ये हो गया, पर ये है। इसको अगर हम लेस देन इक्वल टू कर दें, अब ये डिस्क बन गई। अब डिस्क आपका क्या है, डिस्क में तो आपके ये पास हो पॉइंट जाएगा लाइक convex set। है ना, तो कीप इन माइंड, यस सर्किल इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है वाइवा इंटरव्यू में, पूछा जाता है, ध्यान रखना। बट डिस्क इज अ कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स सेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे स्फीयर के लिए, स्फीयर इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट बट सॉलिड बॉल इज अ Is a कॉन्वेक्स सेट, है ना। Convex सॉलिड बॉल set. अगर हम ले लेंगे, बॉल का मतलब भी सॉलिड होता है ना। तो अगर आपने बॉल ले लिया है सॉलिड, तो उस पे आपका हो जाएगा, एंड सो ऑन। और बताइए, ये फिगर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स सेट No, बनाएगा ये? नहीं नो सर, सर। नो सर। ये लो, ये पॉइंट आ तो No. रहा अंदर, ये ज्वाइन करने वाले आ तो सारे रहा है। बाउंड्री पॉइंट ले लेंगे, उनसे लाइन सेगमेंट बनाएंगे सर, नहीं हो पाएगा। बाउंड्री क्या, यही 2 पॉइंट ले लो, ये कहाँ आ रहा है, बाउंड्री में कहाँ जा रहा है, ये ना, ये सर वही। है हाँ। ना। तो कॉन्वेक्स के लिए सारे, अब ये नहीं कि यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मिलाने वाला सेगमेंट, लेकिन नॉट
all the points coming which is satisfying the definition, है ना. Derivation says कि for all x y in S, for any लिखा था, इसका मतलब for all x y in S ही है ना. ये lambda x plus 1 minus lambda y belongs to S for all x y in S, and where lambda belongs to 0 1 है ना. इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0 1 इंटरवल. तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं जो नहीं आ रहे हैं ना, या आप ऐसा इस टाइप से ले लें. अब यहाँ पर क्या है, ये कॉन्वेक्स है क्या? 20 से अगर होल है तो नो सर, नहीं है. नो सर. चाहे आपके पास ये हो एनुलस टाइप का. तो फिगर देख के यू कैन गेट द आइडिया इमीडिएटली दैट विच साइड इज कॉन्वेक्स विच इज नॉट कॉन्वेक्स. और अगर फिगर से नहीं होगा तो फिर हम उसे चेक करेंगे बाय टेकिंग आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड देन वी विल चेक सर मैथमेटिकली. स्क्वायर होगा क्या कॉन्वेक्स? स्क्वायर ये जी बताओ, जी जी. बताइए, आप बताओ. सर अगर सर डायगोनल की बात करें तो हो जाएगा. डायगोनल की मतलब मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, मतलब एक पॉइंट यहाँ लिया, अब ये ये ज्वाइन कर दिया. ये भी क्यों? तो जब भी कोई भी चीज इफ समथिंग इट्स हॉलो है ना, ब्लैंक है. सर ये इसके अंदर ही तो है. ये तो स्क्वायर, आप कैसे स्क्वायर सिर्फ ये होता है, स्क्वायर में 20 की फिगर नहीं होती है. जैसे Yes, सर्किल sir. है वैसे स्क्वायर है. सर्किल लाइक सर्कुलर, स्क्वायर इज दिस. ठीक है. तो अगर आप स्क्वायर लेना चाह रहे हैं तो यू विल हैव टू से दैट इफ यू आर टेकिंग द इनसाइड रीजन लाइक x lying between a to b and y lying between a to b. अब जो ये बनेगा, अब ये स्क्वायर बनेगा सॉलिड आपका, अब ये होगा है ना, कॉन्वेक्स. ये वाला अब कॉन्वेक्स हो जाएगा. दिस इज अ स्क्वायर. सर ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है सर इसमें. क्यों कंफ्यूजन हो रही है? सर दो चार एग्जांपल दे दीजिए जो कॉन्वेक्स हो. कॉन्वेक्स के दे तो दिए. डिस्क है आपके पास, एलिप्स ले लीजिए कंटेनिंग इनसाइड रीजन, एलिप्स है ना. यू कैन से डिस्क विद मतलब एलिप्टिकल डिस्क, ये सब कॉन्वेक्स है. तो अगर लेस देन The whole होगा तो R2 हमेशा फिर कौन- the whole R2 is convex. कोई भी 2 पॉइंट ले लें आप, ठीक है, R2 में ही रहेंगे. R2 में Yes, रहेंगे. sir. लेकिन अगर मैं R2 अब एक साइड ऐसा बना दूं, यूनियन ऑफ टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, है ना. अगर मैं साइड एक ऐसा बनाऊं, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, अब बताओ क्या ये कॉन्वेक्स है? फर्स्ट एंड थर्ड का हाँ, यूनियन. सर, तो ये आपके नहीं, पास ये क्योंकि आया एक और ये अगर आया second- है. हाँ, कॉन्वेक्स है क्या ये? सर नो ये थोड़ी है No, सर. sir. लाइक अरे सेकंड क्वाड्रेंट में तो R2 पॉइंट हो में सकता कॉन्वेक्स नहीं है सर. नहीं है ये. हाँ. बिकॉज अगर एक No, पॉइंट sir. में ये ले लूं, एक पॉइंट ये ले लूं, तो ये नहीं आ रहा है ना. व्हाट अबाउट फर्स्ट यूनियन सेकंड, फर्स्ट यूनियन सेकंड, ये और ये होगा सर कॉन्वेक्स. है. तकी बताओ. फर्स्ट एंड सेकंड, सिर्फ ये वाला पोर्शन लिया मैंने, ये पूरा. दिस इज इट कॉन्वेक्स? क्या पॉइंट ऐसा हो रहा है, 2 पॉइंट ऐसे जिसमें सर्च करो जिसका लाइन सेगमेंट इसमें नहीं आता हो, सर्च करो. पॉइंट सेट से उठाने हैं, आपको ध्यान रखना है, पॉइंट यहां से नहीं लेना है. यू हैव टू टेक 2 पॉइंट्स फ्रॉम द सेट इटसेल्फ. सर एक भी नहीं होगा. क्या नहीं होगा? जो पॉइंट सेटिस्फाई ना करे फर्स्ट हम्म. एंड सेकंड क्वाड्रेंट. तो ये कॉन्वेक्स है फर्स्ट और सेकंड का यूनियन. यस सर. क्यों भाई? तकी कहाँ गए? तकी की आवाज नहीं आ रही. तकी कंफ्यूज हो रहे थे ना, या जो भी कंफ्यूज है वो बताएं. जिनके समझ में आ गया दैट्स गुड. नेट चला गया क्या उसका, तकी का? चलिए ठीक है. तो यू कैन सी इजीली, आप खुद प्लॉट कर सकते हैं. कोई भी पूरा ब्लैंक पूरा. अच्छा ये कॉन्वेक्स है क्या? चलो अच्छा ये बताओ. R2 माइनस ओरिजिन, बताओ. इज इट अ कॉन्वेक्स सेट? नो सर. No, sir. नो सर.
एक No, भी जगह sir. अगर फेल किया तो वो कॉन्वेक्स हाँ, नहीं होता है, इसमें ओरिजिन से जो करेंगे क्योंकि अब फिर वहां आपने पे अगर कोई सेटिस्फाई भी नहीं हो ऐसे पाएगा। पॉइंट दिया है जो ओरिजिन से पता, ओरिजिन तो ये है ही नहीं, है ना, तो नॉट कॉन्वेक्स। तो एनी रीजन विद होल्स इज नॉट कॉन्वेक्स। किसी भी रीजन में अगर एक भी होल हो गया तो इट इज नॉट कॉन्वेक्स सेट, है ना। तो कॉन्वेक्स सेट फाई हो सकता है, यस सर। है, उसमें एलिमेंट होनी जरूरी है ना। अब फाई को आप कन्वेंशनली कह सकते हैं, कन्वेंशनली आप कह सकते हैं पॉइंट सर, पॉइंट तो हो सकता है ना हैं, कहता रहा हूँ फाइव को सर, आप फाइव कन्वेंशनली तो कह एक सकते टाइप हैं। का पॉइंट हो जाएगा ना। नहीं, फाइव का मतलब ये हुआ कुछ है ही नहीं उसके अंदर, देयर इज नथिंग। तो आप कहते हैं ना जैसे फाइव इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, तो जो फाइव है कन्वेंशनली कह सकते हैं आप कॉन्वेक्स है, कि तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो जब कोई पॉइंट नहीं है तो लाइन सेगमेंट भी आप जो है कह सकते हैं कि नहीं है उसमें। तो कन्वेंशनली आई कैन कंसीडर इट्स अ कॉन्वेक्स सेट, क्योंकि एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब एम्प्टी सब कुछ होता है ना। यस सर। हाँ, Yes, sir. कन्वेंशनली वी कैन से कोई एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट वेक्टर स्पेस भी है, एम्प्टी सेट ग्रुप भी है, रिंग भी है, सब है। जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ा रहे थे तो वहां पर आया था। as there is no point to check so conventionally it's a vector space। ये बात लिखी है उसमें, आपकी जो बुक चलती है, कौन सी बुक थी, वीएम जबरा की, क्या नाम था उसका, कृष्णमूर्ति। वी कृष्णमूर्ति। हाँ, हम्म। ठीक है। अब जैसे मैथमेटिकली जैसे हमें चेक करना है, जैसे एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल है, शो दैट द सेट, शो दैट द सेट S is equal to x1 x2 such that 3x1 square plus 2x2 square less than equal to 6, so that it is a convex, it is convex। अब आपको देखो दिख रहा है डायरेक्ट कि कॉन्वेक्स होगा, देखो ये यू कैन आइडेंटिफाई इजीली व्हाट इज दिस, इट इज एन इलिप्स, Yes. बट बिकॉज Ellipse लेस है देन सर। इक्वल टू, तो कैसा इलिप्स है ये, कंटेनिंग द इनसाइड सॉरी, रीजन आल्सो, है ना, जैसे डिस्क होता है। इसको अगर आप प्लॉट Yes, करेंगे sir. तो इट विल बी x1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x2 स्क्वायर अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 1। तो आप आराम से एक इलिप्स बना सकते हैं इसमें। मेजर माइनर, मेजर √3 होगा इसमें, चलो √3 ये मेजर होगा, ये माइनर। पॉइंट इज के इट इज हैविंग ऑल द फिगर, ना इसकी फिगर ऐसे नहीं, इसकी यूं ऐसे बनेगी, इस टाइप का इलिप्स बनेगा ये एक्चुअली, नॉट दिस, है ना। लेकिन हमें इसे शो करना है अब, तो एक तो आप ग्राफिकली लिख सकते हैं बाय प्लॉटिंग इट, लेकिन अगर मुझे शो करना है तो आई विल शो इट बाय टेकिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, है ना। So what I have to show? I have to consider any line segment joining x and y. So you will have to take 2 point arbitrary. So let x is equal to, अब x का मतलब क्या होगा, x1 x2, let x1 and y means y1 y2, ठीक, these belongs to s। तो we claim, तो हमारा claim क्या होगा भाई, we claim that any line segment, suppose मैं इसे u से नोट कर दूं, बुक की नोटेशन यूज कर रहा हूं मैं आपकी, है ना, तो u क्या होगा, लैम्डा x प्लस 1 minus lambda y, 1 use any minus lambda arbitrary y। point। हाँ, so I will show that this also belongs to this set S, where of course lambda length 0 2, है ना, ये हमें शो करना है, this thing I will show, क्योंकि u is an arbitrary point, if it is we can show this, we are done। अब xy belongs to S है, देखिए since xy belongs to S, this implies that they will be satisfying क्या, 3x1 square plus 2x2 square less than equal to 6 and 3y1 square plus 2y2 square less than equal to 6। If I want to show u belongs to S, what I have to show, बताइए। If I want to show u belongs to S, what I have to show,
ये समझना पहले बहुत जरूरी है। सर x1 x2 हाँ? आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही भाई, कौन बोल रहा है, कोई और बताए भैया। u अगर आपका देखिए u अगर s में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि u विल बी आल्सो सम u1 u2 ऑर्डर्ड पेयर होगा ये। तो व्हाट वी हैव टू शो, है ना, वी हैव टू शो व्हाट 3u1 स्क्वायर प्लस 2u2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6। अगर हमने ये शो कर दिया ओनली देन इट विल बी इन द सेट S। ओके, इज इट क्लियर? अभी जो u लिखा है ना आपने Yes, sir. हाँ, ये देखो ये u जो लिखा है इसके वैल्यू रखोगे तो u1 u2 तो आएगा। ये u जो है u क्या है आपका लैम्डा x1 x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1 y2। तो बेसिकली क्या है, इसे आप सॉल्व करें, इट इज 2 पॉइंट्स लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1 एडिशन कंपोनेंट वाइज एंड लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2। ये तो होगा, बोलिए। So it is your u1, it is your u2. I want to show this thing less than equal to 6. So what I will take? I will take the left hand side and I will prove it is less than equal to 6. और u1 u2 में पता चल गया what is u1 u2. So I will take now. So 3u1 square plus 2u2 square. That means 3. तो u1 कितना था आपका? This is your u1 first lambda x1 plus 1 minus lambda y1 its square plus twice lambda x2 plus 1 minus lambda y2 स्क्वायर। यहाँ तक चीज क्लियर है नहीं, ये बताइए पहले मुझे। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। ये सर Yes, sir. हमें तकी आवाज कहाँ चली गई है तुम्हारी बीच में, समझ में आ रहा है? मोहम्मद तकी, जी सर। बताए आवाज चली क्यों आती है बीच बीच में भाई? सर किसकी? तुमने कोई चीज पूछी थी कि सारी चीज क्लियर नहीं है, मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने पूछा बताइए ताकि समझ में आया, आपकी आवाज ही नहीं थी कोई। सर मैंने बताया तो था, आ गई वो पूछा था मैंने जो अभी आप इससे पहले पढ़ा रहे थे सबसेट वाला। अच्छा चलिए ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, दिस थिंग लेस देन इक्वल टू 6। तो व्हाट आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, है ना। आई वांट टू शो दिस, इफ आई वांट टू शो u बिलोंग्स टू s आई विल हैव टू शो दिस थिंग लेस देन इक्वल टू 6। तो आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें u1 u2 पता चल गया यहाँ से कि दिस इज योर u1 दिस इज योर u2। चलो अब थोड़ी सी हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, कुछ मैथमेटिक्स कंसेप्ट लगाने होंगे। थ्री इसको ओपन कर लेते हैं भाई जरा। तो देखो लैम्डा स्क्वायर का टर्म आएगा तो आई एम राइटिंग लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर आपका एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से। तो आई एम टेकिंग लैम्डा स्क्वायर आउटसाइड। तो व्हाट यू हैव 3x1 स्क्वायर x1 प्लस 2x2 प्लस स्क्वायर। 2x2 स्क्वायर है। ठीक है। सिमिलरली 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर का टर्म लिख लें अगर हम, तो यू विल बी हैविंग 3y1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस प्लस 2y2 स्क्वायर। ओके, एंड प्लस 2 लैम्डा इसमें आएगा, देखिए होल स्क्वायर खोलेंगे आप, 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पर आएगा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। तो आई कैन टेक आउटसाइड 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, है ना, दोनों में आएगा। तो हियर व्हाट यू विल बी कमिंग x1 y1 3 इज आउटसाइड। तो हाउ मच 3 x1 y1 और यहाँ पर भी 2 प्लस 2 x1 y1 x2 y2, है ना, यहाँ x2 x2 y2 में। या ओके, तो हमने स्क्वायरिंग ओपन करके टर्म सेपरेट कर लिए। नाउ देखिए दिस थिंग इज ऑलरेडी हमें पता है बिकॉज दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस बिलोंग्स टू s। तो ये तो ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू 6 लेस था, देन है ना। इक्वल टू 6 यस सर। तो यहाँ पर मैं लेस देन इक्वल टू लगा ही सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर बड़ा टर्म लगा रहा हूँ तो 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस दिस थिंग आल्सो 3y1 लेस देन स्क्वायर। इक्वल टू 6 सो प्लस 6 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस, देखो इसको अगर हम देखें ये क्या चीज है, यहाँ पर मैं एक इनइक्वालिटी लगाता हूँ, फिर से यहाँ लिखेंगे कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, आपने अगर पढ़ी होगी। It's called Cauchy-Schwarz inequality.
it says that x1 y1 plus x2 y2, it is less than equal to under root x1 square plus x2 square and y1 square plus y2 square. ये कॉची इक्वलिटी होती है कि if you have product तो it will be less than equal to under root square of x1 square x2 square into y1 square plus y2 square. ठीक है, इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा उसमें, फंक्शनल एनालिसिस में आते हैं ये चीजें सारी। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या आपके पास 3x1 y1 है, यू हैव 3x1 y1 प्लस 2x2 y2 है ना। तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे 3 को भी इंक्लूड करना है, दिस आई कैन राइट रूट 3x1 इंटू रूट 3y1 एंड 2x2 y2 को आई कैन राइट रूट 2x2 इंटू रूट 2y2। ठीक है, अब जब आप इक्वलिटी में रखेंगे तो क्या होगा, बाय दिस इक्वल x1 की जगह पर अब आपके पास है रूट 3x1, सो यू हैव अंडर रूट 3x1 रूट स्क्वायर 3x1 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 3x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर है ना, क्योंकि x2 की जगह पर क्या है रूट 2। सिमिलरली हियर 3y1 स्क्वायर प्लस 2y2, ये तो आ जाएगा, बोलिए। यस सर So, and this is what? This is already, you know, it is less than equal to 6 है ना, so this is already less than equal to 6. So what I can write here, this is less than equal to root 6, इसके लिए रख दिस रूट 6 कितना आ गया, ये 6 आ गया 6 है ना। तो इट मींस कि दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 6 और 2 ऑलरेडी बाहर था, तो क्या हो जाएगा ये 12 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, बोलिए। क्लियर क्लियर। अब दिस इज व्हाट, दिस इक्वल टू, अब देखो इक्वल इसके लगा रहा हूँ, ध्यान रख, इसके इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल है किसके, 6 अगर हम कॉमन ले लें तो ये किसके इक्वल है, लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। देखिए 6 आउटसाइड ले ले, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर है ना, so it is how much 6, so this implies that 3u1 square plus 2u2 square less than equal to 6 implies that u belongs to S, implies that S is a convex set.